Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। So now we are going into this week's topic. इस हफ्ते के शीर्षक में हम जाएंगे अभी। We are going to discuss on Jehovah Jireh. आज हम यहोवा ईरे इस पर हम मनन करेंगे। Jehovah is a very, very important name. यहोवा जो है बहुत बहुत मुख्य नाम है, Because it is God's personal name. क्योंकि ये परमेश्वर का व्यक्तित्व नाम है। This is not a title. ये कोई उपाधि नहीं। If you are saying Christy Paul, you are telling my name. अगर आप क्रिस्टी पॉल कहते हैं तो आप मेरा नाम बता रहे हैं। If you are saying pastor, reverend, sir, all this is title. और अगर आप पास्टर, रेवरेंड, डॉक्टर, ये सब हमारे उपाधियां होती हैं। But when you say the Christy Paul, you are calling my name. लेकिन जब आप क्रिस्टी पॉल कहते हैं तो मेरा नाम बता रहे हैं। Like that, if you say El Shaddai, El Elyon, all this is title. और वैसे ही जैसे एल शडाई, एल एलियोन, ये सब उनकी उपाधियां हैं। But when you say Jehovah, लेकिन जब आप यहोवा कहते हैं, that is the name of God. वह परमेश्वर का नाम है। So we are going to discuss first about the name Jehovah. पहले हम इस नाम यहोवा पर हम बातचीत करेंगे। Among the ancient people और प्राचीन लोगों में who lived in the Middle East, जो मध्य पूर्वी में बसे थे, they have different gods to do various things. और अलग-अलग बातों के लिए अलग-अलग देवता थे उनके। One god they had for rain, एक बारिश के लिए देवता, one god they had for salt water, और नमकीन पानी के लिए एक देवता, one god they had for fresh water, ताजे पानी के लिए एक देवता, and one god they had for river. नदियों के लिए वह एक देवता। So when you see for water itself they had four gods. तो आप देखते हैं पानी के क्षेत्र में ही 4 देवता उनके। So if they want sunshine, there is a different god. और अगर उन्हें सूर्य की रोशनी चाहिए उसके लिए एक देवता। If they want crops to grow, there is a different god. अगर फसल चाहिए उसके लिए अलग देवता। Now when the people of Israel were in Egypt, और जब इस्राएली लोग मिस्र में थे, we see they had 10 plagues. हम देखते हैं कि 10 विपत्तियां हुई वहां पर। The 10 plagues are not 10 things which God decided to do. और ये 10 विपत्तियां ऐसा नहीं कि कुछ 10 विषय परमेश्वर ने जो ठान लिया करने के लिए। Why did God torture them with 10 plagues? क्यों परमेश्वर ने उन्हें 10 विपत्तियों से पीड़ित किया? It is not our God is a sadist God. He is very happy when people are suffering. और ये नहीं हमारे परमेश्वर एक सैडिस्ट परमेश्वर जो दूसरों को पीड़ा में देकर खुश होते हैं। That 10 plagues is because of the gods of Egypt. और ये 10 विपत्तियां उन मिस्र के देवताओं के कारण। Everything is an Egyptian god. और एक-एक जो आई थी सब एक-एक मिस्र के देवता थे। Nile river they considered God. नाइल नदी को उन्होंने परमेश्वर माना। It turned into blood. वह खून में बदल गया। It is attacking the god of Nile. और ये जो नाइल नदी के देवता उस पर आक्रमण था ये। God wants to say Jehovah God is superior to any other gods. परमेश्वर कहना चाहते हैं कि यहोवा परमेश्वर अन्य सब देवताओं के ऊपर वह श्रेष्ठ परमेश्वर है। So they were not just plagues, So they were attack on the Egyptian gods. ये सिर्फ विपत्तियां नहीं लेकिन उन मिस्र जो देवता थे उन पर आक्रमण था ये। Now, based on the need, the Egyptian people will change the god. उनकी जरूरतों के आधार पर उनके देवता बदलते रहते। If they want food, it is different god. अगर उन्हें आहार चाहिए अलग देवता, If they want rain, it is a different god. अगर बारिश चाहिए तो अलग देवता। So whenever the need changes, the god changes. तो जब भी जरूरत बदलती उनके देवता बदल जाते। So the whole issue of the Old Testament तो पुराने नियम की जो सारी जो विषय है,
when they moved into the promised land, और जब प्रतिज्ञा किए गए जमीन पर वो गए, they easily fell as victims to worshipping other gods. अन्य देवताओं को पूजने में वह शिकार बन गए। Now we are thinking, how did these Israelites do such a mistake? हम सोचते हैं ये इस्राएलियों ने ऐसा काम कैसे किया। They had a god in Canaan, that is the god Baal, for the crops. और कनान में उपज के लिए एक देवता को मानते थे जिसका नाम था बाल। When the Israelites moved into Canaan, और जब इस्राएली लोग कनान में बस गए, most of the people, the work what they did were they were farmers. और वहां से ज्यादा लोग किसान ही थे वहां पर। So when the crops are not growing, और जब उपज नहीं आती थी, it is a big temptation to worship pagan god. तो उनके लिए ये बहुत ही बड़ी परीक्षा थी कि वह इन अन्य देवताओं को पूजना शुरू करें। So now they started worshipping like that. तो ऐसा करना शुरू कर दिया उन्होंने। But what our God wants to convey to everybody, लेकिन हमारे परमेश्वर सबको क्या बताना चाहते हैं? I do it all. मैं सब कुछ करता हूँ। I can provide everything. मैं सब कुछ दे सकता हूँ। The whole Bible teaches us that we have one God. और पूरी बाइबल ये सिखाती है कि हमारे एकमात्र परमेश्वर हैं। If you study the name of God, अगर आप परमेश्वर के नाम को पढ़ेंगे, the name is YHWH. और उनका नाम है YHWH। Now in Hebrew there is no vowels. इब्रानी में कोई स्वर नहीं होते। So the name of God is YHWH. परमेश्वर का नाम है YHWH। So you cannot pronounce that. तो आप उसका उच्चारण नहीं कर सकते। If you see Psalms 119, अगर आप वचन संहिता 119 को देखेंगे, it gives the names of Hebrew alphabets. और सब इब्रानी अक्षर वहां पर आप देख पाएंगे। Every 8 verse there is one alphabet. हर 8 जो पद हैं उनके बाद एक इब्रानी अक्षर आप देखेंगे। So first the name Aleph is there. पहले अलफ है। Then after 8 verse you see Bet. 8 वचनों के बाद बेत है। From Aleph and Bet came the name alphabet. और अलफ और बेत यहीं से अल्फाबेट ये शब्द आया। This Hebrew language has 22 consonants. और इस इब्रानी भाषा में 22 व्यंजन हैं। There is no J in Hebrew. इब्रानी में जे ऐसा उच्चारण नहीं होता। So the question will come, तो सवाल उठेगा, how do you say Jehovah? तो आप यहोवा कैसे कहेंगे? Actually, it is not Jehovah, it is Yehovah. और उसे यहोवा ऐसा उच्चारण नहीं करते, यहोवा कहा जाता है। We have to pronounce with the name YEHOWAH, Yehovah. और हमें ऐसे उच्चारण करना है जिसका स्पेलिंग है YHOWAH। But because it is translated in English, we use Jehovah. क्योंकि इसे अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है तो हम अंग्रेजी में यहोवा कहते हैं। Now Hebrew alphabets has word pictures. और इब्रानी अक्षरों के शब्द चित्र होते हैं। If you say Beth, अगर आप बेत कहते हैं, it represents house. और इसका अर्थ है घर। So when you say Bethel, तो जब आप बेत एल कहते हैं, it means house of God. Beth plus El is equal to house of God. बेत और एल को मिलाकर परमेश्वर का घर, ऐसे उसका अर्थ आता है। When you say the word Ani, और जब आप ये कहते हैं अनी, it means poor. इसका मतलब है दीन लोग। So when you say Bethany, तो इसलिए जब आप बेतानी कहते हैं, it refers to Beth plus Ani, which means house of poor. तो बेत और अनी को मिलाकर वह दीनों का घर, ऐसे अर्थ आता है उसका। When you say Lehem, जब आप लहम कहते हैं, it means bread. उसका मतलब है रोटी। So when you say Bethlehem, it means house of bread. तो जब आप बेत लहम कहते हैं, इसका मतलब है रोटी का घर।
So in every alphabet in Hebrew has a word picture. हर एक अक्षर जो इब्रानी में है उसका एक शब्द चित्र है। But when you say YHWH, जब आप YHWH कहते हैं, how can we arrive that as Yehovah? उसे हम कैसे कह सकते हैं कि उसका मतलब है यहोवा? From where does this E come? Where does this O come? Where does the vowels come? और ये जो स्वर हैं ई, ओ, ए, ये सब कहाँ से आते हैं? Now they have taken the name from the name Elohim and inserted into Yehovah. और एलोहीम यहाँ से उन स्वरों को लेकर यहोवा के अंदर डाले हैं। So when you say Yehovah, तो जब आप यहोवा कहते हैं, it is actually YHWH. तो सच में YHWH है। The word Elohim is inserted. The vowels from Elohim is inserted into this. तो एलोहीम के अंदर जो स्वर हैं वह इनके अंदर डाले गए हैं। Elohim, the meaning is powers. और जो एलोहीम इसका जो शब्द है उसका मतलब ये है Powers. पावर्स, जो शक्तियां। Bereshit bara Elohim et hashamayim va et haaretz. So the word Elohim comes here. तो यहाँ पर आप देखते हैं जो पहला वचन है वह बेरेशित बेरा एलोहीम एक हशमाइम व एक हाआरेत्स। There Elohim comes. यहाँ पर एलोहीम आता है। In the beginning there was a power. God was a power. So there the word power comes. और आदि में एक परमेश्वर थे, वहाँ पर शक्ति ये नाम आता है। So that Elohim is taken and YHWH, it is inserted, these vowels are inserted into this, so it comes the name Yehovah. तो एलोहीम से जो स्वर हैं यह YHWH के अंदर डाले गए और ये नाम यहोवा आता है। Is this clear till now how the word Yehovah has come? क्या यहाँ तक सबको स्पष्ट है कि कैसे ये नाम यहोवा आया है? Yes or no? You don't understand. हाँ या ना? Everybody understands? सब लोग समझ गए? If you respond, it will be good. अगर आप प्रत्युत्तर दें तो अच्छा रहेगा। You can give a thumbs up आप एक thumbs up दिखा सकते हैं। because majority of the crowd is very silent. तो सब लोग बहुत ही चुपचाप सुन रहे हैं। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। So now the Jewish people will not pronounce the name Jehovah. यहूदी लोग इस नाम का उच्चारण नहीं करते यहोवा। Why they don't pronounce? क्यों नहीं कहते? Because in Exodus chapter 20, क्योंकि निर्गमन के 20 अध्याय में it says, "Thou shalt not use the name of God in vain." क्योंकि वहां पर लिखा है कि परमेश्वर का नाम तुम ऐसे ही व्यर्थ में उपयोग नहीं करोगे। So in the fear of using the name wrongly, तो इस भय में कि वह गलत उपयोग ना कर दें, they have stopped using the name. उन्होंने उनका नाम ही उच्चारण करना छोड़ दिया है। So you can never see a Jew using the name Yehovah. तो कोई भी यहूदी को आप नहीं देखेंगे इस नाम यहोवा को उपयोग करते हुए। So what they do? तो क्या करते हैं वो? They have replaced the name Yehovah with the word Adonai. तो उस शब्द यहोवा को उन्होंने प्रतिस्थापित किया है अदोनाई के साथ। So instead of Yehovah, they say Adonai. यहोवा के बदले में अदोनाई कहते हैं। The name Yehovah comes 5,500 times in the Old Testament. पुराने नियम में 5,500 बार ये नाम यहोवा उपयोग हुआ है। And in the Hebrew Bible, it is replaced. It is replaced means while pronouncing, they pronounce as Adonai. और इब्रानी में लेकिन उसे अदोनाई के साथ प्रतिस्थापित किया गया है। When it was translated in English, और जब यह अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, out of respect, आदर के कारण, English also doesn't say Yehovah. अंग्रेजी बाइबल में भी यहोवा शब्द नहीं उपयोग किया गया। So they have started using the word Lord. इसलिए ये शब्द लॉर्ड उसको उपयोग किया है। Now you will ask a question. अभी आप एक सवाल पूछेंगे, Wherever Lord is coming, will I know that it refers to Yehovah? तो जहाँ पर भी लॉर्ड आता है क्या मैं ये समझूं कि ये यहोवा को
प्रकट कर रहा है। I will tell you how you can know that. मैं आपको बताऊंगा कैसे इस बात को आप समझेंगे। If it says LORD in capital letters, अगर चारों अक्षर LORD वह बड़े अक्षरों में हो, then it says Jehovah. तो इसका मतलब यहोवा को प्रकट कर रहा है। I will give you an example. आपको एक उदाहरण दूंगा। Psalm 23 verse 1 says, वचन संहिता 23 का 1 कहता है, the Lord is my shepherd. यहोवा मेरा चरवाहा। So if you say Lord, then it means we are talking about Jehovah. और वहाँ पर लॉर्ड आप देखेंगे तो यहोवा को ही बता रहे हैं। But I think in Hindi there is no problem. लेकिन हिंदी में कोई समस्या नहीं। It directly says Jehovah, am I correct? सीधा यहोवा ही लिखा है वहाँ पर। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Now if you take Deuteronomy chapter 6 verse 4-5, अगर आप व्यवस्था विवरण का 6 उसका 4 और 5 लेंगे, hear O Israel, the Lord your God, the Lord is one. हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। Now I use the word Lord in English. अभी मैं अंग्रेजी में लॉर्ड इस्तेमाल करता हूँ। Now in Hindi reading we see the word Jehovah. हिंदी में देखते हैं कि यहोवा ही लिखा है। Now when you say Jehovah, जब आप यहोवा कहते हैं, it is a noun. वह एक संज्ञा है। You have to understand it is a name we are calling Jehovah. यहाँ पर एक नाम को हम बुलाते हैं यहोवा। It also has a verb. उसमें एक क्रिया शब्द भी है। Now the verb is Hayya. और वह शब्द है हय्या। I am. मैं हूँ। I am. मैं हूँ। Now Moses wanted to know who is God. मूसा जानना चाहते थे कि परमेश्वर कौन है। He is seeing a bush burning in Exodus chapter 3. और निर्मल के 3 में एक जलती झाड़ी को देखते हैं। Now Moses is near the burning bush. अभी मूसा उस झाड़ी के पास खड़े हैं। He is asking God, और वह परमेश्वर से पूछते हैं, what is your name? आपका नाम क्या है? His question is not to know the name of God. उनका सवाल ये नहीं था कि परमेश्वर का नाम जाने। His question is to know what do you do? What is your specialty? और उनका यही सवाल था कि आपकी विशेषता क्या है, आप कौन सा कार्य करते हैं। So God explains his name in verb. तो एक क्रिया में परमेश्वर अपने नाम को समझाते हैं। I am that I am. मैं जो हूँ सो हूँ। That is the word Jehovah. वही है यहोवा। But it is not told as a noun, it is told as a verb. यहाँ पर एक संज्ञा के रूप में नहीं कहा गया, लेकिन एक क्रिया के रूप में कहा गया। Now I want to give an example in Hindi. मैं हिंदी में एक उदाहरण देना चाहता हूँ। So, for example, a person's name is Aradhana. अगर किसी का नाम आराधना है, So if I say Aradhana, so I am telling the noun. तो अगर मैं आराधना ऐसा कहूँ तो मैं एक संज्ञा शब्द बता रहा हूँ। But if I have to tell the name and verb, अगर मुझे क्रिया में बताना है, that means it is worship. Am I right? इसका मतलब है उपासना। So I am worship. मैं आराधना हूँ। That is what actually the meaning is. और उसका अर्थ यही है। Can you say any other name like that? प्रार्थना। Pratna. Okay, Pratna also they understand. Something else. Okay. So there are many names where we can call it as a name, or we can say if you put it in a verb, it means an action. और ऐसे बहुत नाम हैं जो एक संज्ञा का रूप लेते हैं और उसे क्रिया का शब्द में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। So now when you say Jehovah, तो अभी जब आप यहोवा कहते हैं, you are telling the name. आप नाम बता रहे हैं। Okay, my daughter has given the name of a person. और मेरी बेटी ने किसी का नाम बताया है। And his name, there was her friend in the school. His name was Innocent. और उसका एक दोस्त था स्कूल में, उसका नाम है इनोसेंट। Innocent means a person
who masum, a person who doesn't commit any mistake. उसका ऐसा मतलब है मासूम, जिसने कोई गलती नहीं की हो. So you call a person innocent, अगर किसी को आप इनोसेंट कह के बुलाएंगे, name. वह नाम है. But really when you put it as a verb, that means that person doesn't commit any mistake. अगर उसे क्रिया शब्द में आप देखेंगे तो ऐसा जो कोई भी गलती नहीं करता. Glory be to. I think, are you understanding what क्या I'm saying? समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? So Yehovah यहोवा is a name. एक नाम है, But when you put it in a verb, लेकिन जब आप उसे क्रिया में डालते हैं, God says, I am that I am. परमेश्वर कहते मैं जो हूँ सो हूँ. So verb form I say in Hebrew, तो इब्रानी का रूप जब मैं इब्रानी में, मैं क्रिया का जो इब्रानी में कहता हूँ, Hayya ve hayya asheret hayya. हय्या वे हय्या अशरेत हय्या, I am to be. और मैं जो हूँ. That is what we have to know about God. वही हमें परमेश्वर के विषय में जानना है. I am. मैं हूँ, That means I will take care. मैं संभाल लूंगा सब. Now we have to understand some things about our God Yehovah. हमारे परमेश्वर यहोवा के विषय में हमें कुछ बातें जाननी हैं. Many things we have understood wrongly about God. कई बातें हमने गलत भी समझ रखी हैं. Firstly, we have to know. पहले हमें ये जानना है, So our God will never react. हमारे परमेश्वर कभी प्रतिक्रिया नहीं करते. Now some people will say, कुछ लोग कहते हैं, I just saw that I got very angry. मैंने ये देखा मुझे इतना गुस्सा आया. No, God sees, He will just remain like that. परमेश्वर देखते हैं, बस चुप रहते हैं. He just does things. वह बस करते हैं कार्य. Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो. Now some people have formed a theology. कुछ लोगों ने ऐसा एक धर्म शास्त्र बनाया है. God created man परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया and man committed sin. और मनुष्य ने पाप कर दिया. God got very angry and परमेश्वर upset. को बहुत गुस्सा आया. Then He gave a bunch of rules for man. और फिर मनुष्य के लिए एक नियम के एक बहुत बड़ा गुत्था दे दिया. So man was not able to follow that. तो मनुष्य उसका पालन नहीं कर पाया. So he made another one plan. तो एक और उन्होंने योजना बनाई. And that plan is to send his own son. वह है कि अपने इकलौते पुत्र को भेजें. And because he sent his son, the Jews rejected. उन्होंने अपने पुत्र को भेजा, यहूदियों ने इनकार किया उनसे. And then he shifted the plan to the Gentiles. और फिर अन्य जातियों के पास वह युक्ति लेकर आए. You think this story is the right story? क्या आप समझते हैं ये कहानी सही है? A total fake story. पूरी तरह से एक गलत या झूठी कहानी है ये. Because our God never reacts. क्योंकि हमारे परमेश्वर कभी तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करते. Suppose you say, I told a lie today. अगर आप कहते हैं आज मैंने एक झूठ कहा, God is watching that. परमेश्वर तुम्हें देखते हैं, He is keeping quiet. चुप रहते हैं He is observing you. और वह तुम्हें ताक रहे हैं. He didn't react. कुछ उसका प्रतिक्रिया नहीं He की, didn't say anything. कुछ नहीं कहा He is calm. He is silent. और वह चुप हैं, बिल्कुल शांत हैं. Can you imagine God like that? क्या आप ऐसे कल्पना कर सकते हैं परमेश्वर की? He never reacts. उन्होंने उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं करते. He is outside of time and He is inside of time. और वह समय के बाहर अपार हैं और समय के अंदर भी हैं. My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, we think in 3 dimensions. हम 3 आयाम में की दृष्टिकोण से देखते हैं. Far, दूर, wide, चौड़ा and high. और ऊंचा. Maximum what we can think is this 3 angles. ज्यादा से ज्यादा हम इन 3 आयाम के बारे में ही हम सोच सकते हैं. There was a person named Albert Einstein. एक मनुष्य था जिसका नाम था एल्बर्ट आइंस्टाइन. He came and told उसने आकर कहा there is a 4th dimension. एक चौथा आयाम भी है. That dimension is called time. और उसे समय कहते हैं.
Our God, we say He is Alpha and Omega. हम कहते हैं हमारे परमेश्वर अल्फा हैं और ओमेगा हैं। He is the beginning and the end. वह आदि और अंत हैं। I am going to explain to you what is beginning and what is end. मैं आपको समझाऊंगा आदि का मतलब क्या है, अंत का मतलब क्या है। What is going to happen 100 years from now? अब से लेकर 100 वर्षों में अभी क्या होगा, Our God knows. हमारे परमेश्वर जानते हैं। Not because He has knowledge of what will happen. इसके लिए नहीं, क्योंकि उन्हें ज्ञान है कि क्या होने वाला है। Now He is there in that place. अभी इस समय वह उस जगह पर हैं। Are you able to understand? क्या आप समझ पा रहे हैं? It is not because He knows what will happen. He is right now. At this moment He is there. इस कारण नहीं क्योंकि उन्हें ज्ञान है कि क्या होने वाला है, लेकिन इसलिए क्योंकि इस समय वह उस स्थान पर हैं। If you ask what happened in the beginning, अगर आप पूछेंगे आदि में क्या हुआ, for us, Adam and Eve, they were in the garden, they took the fruit, they ate. That is past for us. हमारे लिए जो बीता समय भूतकाल है वह आदम और हवा थे, वह आदम के वाटिका में थे, वहां पर उन्होंने फल खाया। ये सब जैसे भूतकाल में है। So when for us it is past, हमारे लिए भूतकाल है, but He is there right now at that moment there also. लेकिन अब इस क्षण वहां पर भी वह है उपस्थित। So beginning also He is there, end also He is there. आदि में भी वह हैं, अंत में भी वह हैं। That is Jehovah God, I am. वही है यहोवा परमेश्वर, मैं हूँ। When we die, what happens? जब हम मरते हैं तो क्या होता है? Time disappears. समय चला जाता है। The only barrier between us and God disappears. और हमारे और परमेश्वर के बीच में जो एकमात्र बाधा है समय, वह चला जाता है। That is the reason Bible says इसीलिए बाइबल यूं कहती है, He was and is to come. वह थे और हैं और आने वाले हैं। We have told this many times. कई बार हमें इसको उपयोग करते हैं। Do we understand the intensity of the statement what we are saying? क्या हम इसकी गहराई को समझ पा रहे हैं जिसको हम बार बार उपयोग करते हैं? He was. वह थे, He is. वह हैं He is to come. और वह आने वाले हैं। He is past tense. He is present tense. He is future tense. He is everywhere, every time. और वह भूतकाल है, वह वर्तमान काल में है, वह भविष्य काल में है, हमेशा और हर समय वह हर जगह पर है। Space is so big. और ये अंतरिक्ष इतना बड़ा है। There is no edge to the space. इस अंतरिक्ष का कोई किनारा नहीं है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। The first miracle what Jesus did. पहला चमत्कार जो परमेश्वर ने किया, यीशु मसीह ने, Changing water to wine. जो पानी को दाख मधु में बदला। We all can change water to wine. हम सब पानी को दाख मधु में बदल सकते हैं। What to do? क्या करना है? Take grapes, अंगूर को लीजिए, put it in a mixie, मिक्सी के अंदर डाल दीजिए, add some water. उसमें कुछ पानी मिलाइए, Now you on the switch, it becomes grape juice. और फिर उसे दाख रस में बदल सकते हैं। Now ferment it. उसके बाद उसको फर्मेंट करना The है। fermentation process should take place. उसके बाद फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है। Now the wine has come. अभी दाख मधु तैयार हो गया। How much time has taken? कितना समय लगा? Maybe 10 days, 15 days or 1 month it has taken. शायद 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना। So did you change water to wine? क्या तुमने पानी को दाख मधु में बदला? Yes. हाँ। I am telling you, there are 50 people now who has come for the function. You have to give wine to them. अभी 50 लोग आए हैं एक उत्सव में, आपको उन्हें दाख मधु देना है। Okay, I will tell you in a very simple form. अभी बहुत ही सरल बात बताऊंगा आपको।
You have to give lassi. तुम्हें अगर लस्सी देनी है सबको, You have milk. तुम्हारे पास दूध है, Now there is no curd. अभी दही नहीं है, So you have milk. तुम्हारे पास दूध है। I am telling you, you have to give lassi to 50 people. मैं कहता हूँ तुम्हें 50 लोगों को लस्सी देनी है। So what you do? तुम क्या करते हो? You ferment the milk. और तुम उसको किण्वन करते हो। And it takes 8 hours, one whole night for it to become curd. और एक पूरी रात लगती है दूध को दही में बदलने के लिए। Then you do all the other process. Now you have prepared lassi. अभी तुमने पूरा क्रिया की और उसको लस्सी में बदल दिया। How much time it has happened? कितना समय लगा उसके लिए? Maybe 10 hours. शायद 10 घंटे। So when you can make lassi, और जब तुम लस्सी बना सकते हो, I can also make that. मैं भी बना सकता हूँ। What is the miracle? इसमें बड़ी बात या चमत्कार क्या है? The time is compressed. कि ये समय जो है वह संकुचित किया गया। What did God do? परमेश्वर ने क्या किया? He compressed the time उन्होंने समय को संकुचित किया, because He is out of time. क्योंकि वह समय के अपार हैं। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। I will give you another one example. एक और उदाहरण दूंगा। Jesus fed with 5 loaves of bread and 2 pieces of fish. He fed 5,000 people. 5 रोटियां और 2 मछलियों के साथ 5,000 लोगों को पोषण किया। Now my question to you. अभी मेरा सवाल आपसे, Can you feed 5,000 people with bread and fish? क्या आप 5,000 लोगों का पोषण सिर्फ 5 रोटियां और 2 मछली के साथ आप कर सकते हैं? Yes or no? No. हाँ या ना? Why you can't do? क्यों नहीं कर सकते? Now you go to the field, अभी आप खेत में जाते हैं sow wheat. और वहां पर आप गेहूं बीज डालते हैं। You wait for 3 months. 3 महीने इंतजार करते हैं। The wheat is harvested. Wheat has come out. अभी वो उपज निकलती है जो गेहूं की। You have harvested the wheat. आपने वो फसल ली है You go and make it into flour. और आप उसे जाके आटे में बदलते हैं। Now you can make roti. अभी आप रोटी बना सकते हैं Go to the sea, और आप सागर के पास जा सकते हैं, catch fish, मछली पकड़ सकते हैं, and clean all the fish. सारी मछली को धो सकते हैं, Make fish fry. वहां से फिश फ्राई बना सकते हैं। Now you give it to 5,000 people. अभी आप 5,000 लोगों में उसे बांट सकते हैं। Can you do it or not? Say yes or no. क्या उसे कर सकते हैं या नहीं? हाँ Yes. ना? Everybody can do. सब लोग कर सकते हैं। See, when majority of the people are silent, और जब आप में से बहुत लोग बिल्कुल चुप रहते हैं, it is disturbing me. मुझे बहुत ही डिस्टर्ब करती है ये बात। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, the message is a very serious message. ये प्रचार, ये संदेश बहुत गंभीर है। Every message I give is a serious message. हर एक प्रचार बहुत ही गंभीर ही होता है। But when you keep very silent, लेकिन जब आप बहुत ही चुप रहते हैं, it is confusing me whether you are listening or not. That question is coming to my mind. मुझे भ्रम में डाल देता है कि क्या आप सच में सुन रहे हैं या नहीं। So I want an answer from you now. इसका उत्तर चाहता हूँ। If this opportunity of preparing the wheat flour and fish and feeding 5,000 people is happening, और अगर ये अवसर दिया जाता है कि उस गेहूं को लेकर आटा बनाकर और मछली को लेकर अगर लोगों में बांटना है, my question to you is, मेरा सवाल आपसे ये है, will you be able to give food, bread and fish for all the people who has come to your house? और जो भी आपके घर आए हैं, क्या आप उन सबको रोटी और मछली दे पाओगे या नहीं? Yes. So 5 loaves of fish, 2 pieces of 5 loaves of bread, 2 pieces of fish. We all can give food. और 5 रोटियां मछली के साथ हम सबको पोषण दे सकते हैं। Now what is the only problem? अभी समस्या क्या है? Time. समय।
That requires 3 months. और उसके लिए 3 महीने का समय चाहिए हमें। If you see many miracles which Jesus has done, the miracle is the time. और कई चमत्कार जो यीशु मसीह ने किए अगर आप देखेंगे उसमें मुख्य चमत्कार है समय। So we have to understand when God says I am means it is a time factor included and He is outside time. और जब परमेश्वर कहते हैं मैं हूं तो वहां पर जो समय की जो बात है उसके अंदर वो शामिल है और परमेश्वर समय के अपार हैं। He is outside time. वह समय के अपार हैं। So which means He can do anything in your life. तो आपके जीवन में वो कुछ भी कर सकते हैं। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Now one direct miracle of time factor is there in the Bible. How many of you know that? बाइबल में एक सीधा एक चमत्कार है जो समय का, आप में से कितने लोग जानते हैं? And who can say what miracle is that? कौन बता सकता है वह कौन सा चमत्कार है? Yes, Sister Anita is raising the hand, so I think she is going to give us the answer. Yes, Sister Anita, you can answer us. Water change into wine, brother. It will take minimum 3 months or 6 months. Yes. Yeah, that is a miracle of time which is indirect. और ये एक इनडायरेक्ट मिरेकल है जो समय के बारे में। Thank you, sister. Thank you. शुक्रिया सिस्टर। There is one miracle in the Bible which talks directly about time. बाइबल में एक ऐसा चमत्कार है जो सीधा समय पर आधारित है वो। So Pastor Christopher is going to tell us. सर Yeah. यहोशू के टाइम में सर जो चमत्कार हुआ था। Fantastic answer, very good. बहुत ही अच्छा उत्तर है। Let us turn our Bible to the book of Joshua. यहोशू की पुस्तक हम लेंगे। Chapter 10 verse 12 to 14. उसका 10वां अध्याय 12 से 14वां वचन। यहोशू 10 उसका 12 से 14। और उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने एमोरियों को इस्राएलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इस्राएलियों के देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर और हे चंद्रमा तू अय्यालोन की तराई के ऊपर थमा रह। और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से पलटा ना लिया। क्या ये बात याशार नामक पुस्तक में नहीं लिखी है कि सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पहर तक न डूबा, ना तो उससे पहले कोई ऐसा दिन हुआ और न उसके बाद जिसमें यहोवा ने किसी पुरुष की सुनी हो, क्योंकि यहोवा तो इस्राएल की ओर से लड़ता था। Joshua is asking God, give me more time. यहोशू परमेश्वर से कहते हैं मुझे और समय दीजिए। Because he has to complete the war. क्योंकि उसे उस युद्ध को पूरा करना था। God says okay. परमेश्वर कहते हैं ठीक है। Now we all know that earth is revolving. हम सब जानते हैं कि धरती घूमती है। Why we are walking on the floor? क्यों हम धरती पर चल पाते हैं? Because of gravity. उस गुरुत्वाकर्षण के कारण। Because of the gravitational pull, we are walking on the road. उस गुरुत्वाकर्षण के कारण हम जमीन पर अपने पांव टिक पाते हैं। If gravity is not there, we will be flying. अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं तो हम सब उड़ते रहेंगे। If you see any video of a man walking in the moon, जब आप किसी मनुष्य का चित्र देखते हैं चांद पर चलते हुए, you will see he is flying. वह आप देख पाएंगे कि वह उड़ता रहता है। What gives gravity to us? और कौन सी बात जो हमें गुरुत्वाकर्षण देती है? It is because of the rotation of the earth. और जो धरती घूमती है उसके कारण। And it is revolving around the sun. और वह सूर्य के इर्द गिर्द वह चक्कर काटती है। So now if Joshua is asking time, अगर अभी यहोशू समय मांगता है,
God has to stop the rotation of the earth. परमेश्वर को उस पृथ्वी के चक्कर को रोकना पड़ेगा, So he has to make it reverse now. तो उसे विपरीत में उसे चलाना है। Now if it is evening 5 p.m., अगर शाम के 5 बजे हैं, he has to take it to morning 9 a.m., उसे सुबह 9 बजे तक लेके जाना है। which means the earth rotation has to be reversed. इसका मतलब जो पृथ्वी का चक्कर है उसे विपरीत दिशा में करना है। When if it is going to be reversed means everybody will fly because the gravitational force is not going to be there. और अगर उसे विपरीत दिशा में वह चक्कर करेगा तो वह गुरुत्वाकर्षण नहीं रहेगा। Who can do this work कौन ये कार्य कर सकता है without disturbing anything? बिना किसी को डिस्टर्ब किए? Just put the earth at a previous point. और उस धरती को पृथ्वी उठाकर किसी दूसरे स्थान में रख देना। Just now if you say this is earth, अगर आप कहते हैं कि ये पृथ्वी है, it has come to this point, यहाँ पर आई है, take the earth and put here. उठाकर इस जगह पर रख देना। You cannot imagine this. आप इसकी कल्पना भी नहीं कर Take सकते। earth and put it here. और पृथ्वी को उठाकर यहाँ पर रख दो। God did it. परमेश्वर ने किया। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, can you imagine how powerful is our God? क्या आप कल्पना कर सकते हैं हमारे परमेश्वर कितने सामर्थी हैं? He will take care of your need means, can you understand to what extent if he has to take the earth and rotate it, he is ready to do it for you. तुम्हारी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं और अगर आपके लिए उस धरती पृथ्वी को विपरीत दिशा में भी उन्हें उठा के रखना पड़े तो वह उसे कर सकते हैं। When Joshua asked it, जब यहोशू ने परमेश्वर से मांगा, God did it for him. परमेश्वर ने उसके लिए किया। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, Daniel is praying to God, दानिएल प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, and angel Gabriel is coming and telling, और जो दूत गैब्रियल है वो आकर कहता है, before the word could come out of your mouth, the answer is already being given. तुम्हारे मुंह से वो शब्द निकलने के समय ही तुम्हारा वो उत्तर आ गया है। How it is possible? कैसे ये मुमकिन है? See, I can only ask, then only you will give, na? मैं तो सिर्फ मांग सकता हूँ, उसके बाद ही आप दे सकते हैं। The Bible also says, ask and it will be given. और बाइबल में भी लिखा है, मांगो तुम्हें मिल जाएगा। But how you are telling, before I ask, before the word could come out of my mouth, answer is already given, how you are telling? आप कैसे कहते हैं कि मेरे मुंह से शब्द निकलने के पहले ही उसका प्रत्युत्तर आ गया है? How many of you want to know this secret? आप में से कितने लोग इसका रहस्य जानना चाहेंगे? I am waiting. मैं इंतजार कर रहा हूँ, कितने लोग जानना चाहते हैं इसका रहस्य? Praise Jesus. Okay, I will tell you. At least 50% of the people have told yes. My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, there is a speed in which the light is traveling. और एक गति है जिसमें प्रकाश यात्रा करता है। 1,86,000 miles per second. 1,86,000 मील प्रति सेकंड। 1,86,000 miles per second. 1,86,000 मील प्रति सेकंड की गति से यात्रा करता है। Our God is light. हमारे परमेश्वर उजियाला हैं। So our God can travel faster than light. तो हमारे परमेश्वर उस उजियाले से भी ज्यादा रफ्तार में वह यात्रा कर सकते हैं। There is a discovery from Albert Einstein. एल्बर्ट आइंस्टाइन ने खोज की है, If you travel faster than the speed of light, अगर आप उस प्रकाश की गति से भी ज्यादा रफ्तार में आप यात्रा करेंगे, time will go backwards. समय पीछे जाएगा। Which means before time could happen, you are faster than that. इसका मतलब वह समय होने से पहले तुम उससे भी जल्दी तेजी से आते हो, आगे बढ़ते हो। So God says, my answer is faster than light. परमेश्वर कहते हैं मेरा उत्तर उस
प्रकाश से भी ज्यादा रफ्तार से आता है। So we can say, तो इसलिए हम कह सकते हैं, before the word has come out of my mouth, the answer is coming now. और मेरे मुंह से ये शब्द निकलने से पहले ही उसका उत्तर आ गया है। That is Jehovah God. हालेलुया, ये है हमारे यहोवा परमेश्वर। Are you understanding about our Jehovah God? क्या आप हमारे यहोवा परमेश्वर के विषय में जान रहे हैं? Just because one man, Joshua, asked, I want time. क्योंकि उस एक मनुष्य यहोशू ने कहा कि मुझे समय चाहिए, He took the earth and moved the position. उस पृथ्वी को उठाकर उसके दूसरे स्थान में उसको रख दिया, Without disturbing anything. बिना किसी और बात को डिस्टर्ब किए। And when you ask, और जब आप मांगते हैं, his answer is faster than the speed of light. उनका उत्तर उस प्रकाश की रफ्तार से भी जल्दी है। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, we are dealing with a supernatural God. हम एक अलौकिक परमेश्वर से जो सर्वदा है उनसे व्यवहार कर रहे हैं। You don't need a God for rain. आपको बारिश के लिए एक देवता नहीं चाहिए। You don't need a God for food. आपको भोजन के लिए कोई परमेश्वर नहीं चाहिए। You don't need a God for sunshine. और धूप के लिए आपको कोई परमेश्वर नहीं चाहिए। You don't need a God for river. तुम्हें नदी के लिए कोई परमेश्वर नहीं चाहिए। God says, I will do it all. परमेश्वर कहते मैं सब कुछ करूंगा। There is no other God before me. और मेरे आगे और कोई भी परमेश्वर नहीं। Genesis to Revelation, some people say contains the word of God. उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य में सब लोग कहते हैं कि परमेश्वर का वचन है, But it is not that it contains the word of God. It is the word of God. और ये नहीं कि उसमें परमेश्वर का वचन है, ये है कि वह खुद वह परमेश्वर है। The Bible says, और बाइबल में लिखा है, My God shall supply all my needs according to His riches and glory in heaven. मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारे हर एक घटी को पूरा करेगा। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। So what is God Jehovah telling you? तो यहोवा परमेश्वर आपसे क्या कहते हैं? I can do it all. मैं सब बातों को कर सकता हूँ। What is that you are trusting today? आज आप किस बात पर भरोसा करते हैं? The Egyptians were trusting in many gods. मिस्र लोग बहुत से देवताओं पर वो भरोसा करते थे। Which is your God today? आज आपके परमेश्वर कौन हैं? Your job? आपकी नौकरी, Your property? आपका धन संपत्ति, Your bank balance? आपके बैंक अकाउंट में जो पैसे हैं। What is your God? आपके देवता कौन हैं? Are you trusting some person? या आप किसी मनुष्य पर भरोसा करते हैं? Or you think you are some influential person is there to help you? या आप सोचते हैं कोई बहुत ही प्रभावशाली मनुष्य है जो आपकी मदद कर सकता है? God wants to convey one message to you. परमेश्वर आपको एक संदेश देना चाहते हैं। Remove all those people out. और उन सबको आप बाहर निकाल दो। I am Jehovah Jireh. I am everything for you. मैं सब कुछ हूँ। You don't need anybody else. तुम्हें और किसी और की आवश्यकता नहीं। I am one person and I will do. वो मनुष्य जो तुम्हारे जीवन में सब कुछ कर सकता हूँ। If you have some other God in the form of a insurance policy, if you have some other God in the form of something which you are depending, now today that God is to be destroyed. अगर आपके जीवन में कोई और परमेश्वर है इंश्योरेंस पॉलिसी के रूप में या किसी और चीज जिस पर आप भरोसा रखते हैं, उसको आपके जीवन से दूर करना है। Now some people say like this, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, I am whatever it is, I am having one house.
जो भी हो, मेरा तो एक घर है ना, I am depending on that only. उस पर ही मैं निर्भर हूँ। Never depend on your house. कभी भी अपने घर पर नहीं निर्भर रहना, It will just like this vanish. और एक क्षण में वह गायब हो सकता है। Depend on the person who will never vanish. और ऐसे मनुष्य, ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करो जो कभी भी आपके जीवन से गायब नहीं होंगे। Genesis chapter 22 says, उत्पत्ति का 22 कहता है, he is telling, Genesis chapter 22 says, उत्पत्ति का 22 यूं कहता है, God tells Abraham, परमेश्वर अब्राहम से कहते हैं, take your only son. अपने इकलौते पुत्र को लेकर Okay, जाओ। can we read that portion? उत्पत्ति का 22 उसका 1 से 8, Can we read from verse 1 to 8? 1 से 8 पढ़ेंगे। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम से ये कहकर उसकी परीक्षा की कि हे इब्राहिम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। सो इब्राहिम बिहान को तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब कूच करके उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन इब्राहिम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, ये लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगा। सो इब्राहिम ने होमबलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में ले लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होमबलि के लिए भेंट कहाँ है? इब्राहिम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होमबलि की भेंट का उपाय आप ही करेगा। Abraham says, the Lord himself will provide. अब्राहम कहते हैं, परमेश्वर आप ही उपाय करेगा। Jehovah Jireh. यहोवा ईरे, This comes from the word Yera. और ये उस शब्द येरा से आता है। Yera means to see. येरा का मतलब है देखना। Yera means to see, to look upon, to view. और येरा का मतलब है देखना, उसके ऊपर से उसको ताकना और ध्यान से देखना। This is the word for pastor. और ये पासवान के लिए शब्द होता है। When God sees means some people get very scared. और जब परमेश्वर देखते हैं तो बहुत लोग डर जाते हैं। Oh, why he is seeing? He wants to see whether I am committing sin. Like that people get scared. क्यों परमेश्वर देखते हैं? क्या वह ये देख रहे हैं कि क्या मैं पाप कर देता हूँ? God sees means he is seeing the circumstances in which you are. परमेश्वर देखते हैं तो उन परिस्थितियों को देखते हैं जिसमें तुम हो, And he wants to fulfill your needs. He wants to supply your needs. That is the reason he sees. और इसलिए देखते हैं क्योंकि तुम्हारी जरूरतों को वह पूरा करना चाहते हैं। He is not a PT master like to come and always with a stick. He wants to come in rounds or like a examination supervisor. He is there to check what you are doing. No. वह पीटी मास्टर के समान नहीं या एग्जामिनेशन वह टीचर के समान नहीं जो आपकी तरफ देखकर आपको आपके वह लकड़ी से मांगना चाहता है। Abraham has taken his son and put on the altar. और अब्राहम ने अपने पुत्र को उस वेदी पर लिटा दिया। Abraham has a need. He wants a son. अब्राहम को एक जरूरत थी कि उसको एक बेटा चाहिए, Because he is going to kill his son. क्योंकि अपने बेटे को अभी मारने को है वो, That son he needs. और वह बेटा उसको चाहिए। At that time God says, उस समय परमेश्वर कहते हैं, Abraham, Abraham. अब्राहम
Do not lay your hand on the boy. अपना हाथ उस बालक पर न रखना। Meaning, do not kill the son. इसका मतलब अपने बेटे को नहीं मारना। Now I see what you see. मैं देखता हूँ कि तुम क्या देखते हो। You have started seeing like how I am seeing. जैसे मैं देखता हूँ तुमने उस प्रकार देखना शुरू कर दिया है। Now Abraham did not have one verse of scripture on that time, at that time. उस समय पर अब्राहम के हाथ में पवित्र शास्त्र का एक भी वचन नहीं था। Now today we are having many verses. आज हमारे पास कितने वचन हैं, But Abraham did not have anything. लेकिन अब्राहम के पास कुछ नहीं था। At that time, उस समय he started believing in God. He put his trust in God. उसने परमेश्वर पर विश्वास किया, अपना भरोसा परमेश्वर पर रखा। What did God say? परमेश्वर ने क्या कहा? Take your only son. अपने इकलौते पुत्र को लेकर जाओ। But actually, how many sons Abraham had? लेकिन सच में अब्राहम के कितने पुत्र थे? He had another one son. एक और बेटा भी था, And that son's name was Ishmael. उसका नाम था इश्माइल। How many sons our eternal Father has? हमारे जो स्वर्गीय पिता हैं उनके कितने बेटे हैं? How many? कितने? Sister Ochma is saying something, so I want to hear what she says. Yes, sister. What do you say? पहले इकलौता था पर आज बहुत है। Yeah, पहले आज बहुत है, but तो पहले इकलौता यीशु था, पहलौठा वो ये। our God had one son. हमारे परमेश्वर के एक पुत्र थे, He had one more son. एक और बेटा भी था। It is given in the Bible. बाइबल में लिखा है। Anybody knows? क्या कोई जानता है? The other son was Adam. और दूसरा बेटा था आदाम। It is written in the Bible. बाइबल में लिखा है। He got many sons later. That's a different issue. बाद में बहुत से संतान हुए। Abraham had one son. अब्राहम का एक पुत्र था, That is Ishmael. वह है इश्माइल। Our God had one son. That is हमारे Adam. परमेश्वर का भी एक पुत्र था, उसका नाम था आदाम। But he sent his only begotten son. लेकिन अपने इकलौते पुत्र को भेजा, That is Yeshua. ये है यीशुआ। So now Isaac, God wants to give Isaac to Abraham back. और अभी इसहाक को वापस अब्राहम को देना चाहते हैं परमेश्वर। So he is sending his only begotten son, Yeshua HaMashiach. तो अपने इकलौते पुत्र यीशुआ हा मसीहा को भेजते हैं And gives the son back to Abraham. अब्राहम को उसका पुत्र लौटा देते हैं। What is required of Abraham to receive this blessing? इस आशीष को पाने के लिए अब्राहम से क्या अपेक्षा की गई? Open the eyes and see. अपनी आंखों को खोलकर देखो। There in the thicket of the thorns there is a ram already there. और वहां पर उस कांटे में वो एक मेंढा पहले से है उस झाड़ी में। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, what is required of you and me for us to receive the blessing? आपसे और मुझसे क्या अपेक्षा की जाती है उन आशीषों को प्राप्त करने के लिए? Open your eyes and see. अपनी आंखों को खोलकर देखिए। What is the meaning? इसका मतलब क्या है? You and me should have faith. आपको और हमें विश्वास होना चाहिए। Will it happen? क्या ये होगा? You should be confident. Yes, it will happen. तुम्हें ये विश्वास होना चाहिए कि हाँ ये होगा। Many times when I say something will happen, even my family will be very surprised and they will be waiting to see that matter happen. कई बार जब मैं कुछ बातें कहता हूँ तो मेरा परिवार ही कभी-कभी बहुत ही अपेक्षा के साथ वह इंतजार करते हैं देखने के लिए कि क्या सच में ये होगा। With what trust or what confidence or faith I am telling. और किस विश्वास, किस भरोसे के साथ मैं ये कह रहा हूँ।
My God is Jehovah Jireh. मेरे परमेश्वर यहोवा ईरे हैं। Philippians chapter 4 verse 19 says, फिलिपियों का 4:19 ये कहता है, and my God will meet all your needs according to his riches and glory in Christ Jesus. और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। I don't want to take all matters in my hand. मैं सब बातों को अपने हाथों में नहीं देना चाहता। I want to put it in the hands of our Lord Jesus Christ. मैं उसे अपने प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप देना चाहता हूँ। We just have to say, Lord, open my eyes. हमें सिर्फ इतना कहना है, परमेश्वर मेरी आँखों को खोलिए। The Bible says, बाइबल में यूं लिखा है, cast your burden unto Jesus, अपनी सारी चिंता तुम यीशु मसीह पर डाल दो, for he cares for you. क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, Jehovah Jireh, यहोवा ईरे, my provider, मेरी सब जरूरतों को पूरा करने वाले, his grace is sufficient for me. उनका अनुग्रह मेरे लिए काफी है। Jehovah Jireh wants to meet all your needs. और यहोवा ईरे तुम्हारी सब जरूरतों को पूरा करना चाहते हैं। When that can happen, और कब ये होगा पूरा? let your spiritual eyes be open. तुम्हारी आत्मिक आंखों को खुल जाना है। And when it is open, और कब ये खुल जाता है, your needs are met. तुम्हारी जरूरतें पूरी होती हैं। May God give us all the faith which is required for this. परमेश्वर हम सबको उस विश्वास से भरे जो इसके लिए जरूरी है। Shall we close our eyes? क्या हम अपनी आंखों को बंद करेंगे? Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, thank you for speaking to us.